This program is brought to you by GNRC Hospitals. Quality, value, trust. নমস্কাৰ মেজ মেলৰ মজিয়ালে আপোনাক জনাইছো আন্তৰিক আদৰণি আপোনালোক সকলোৱে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে আজি পুৱা নতুন দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত অন্নখনৰত সুখ্যাত বিজ্ঞানী সমাজকৰ্মী আৰু লেখক সোনাম ৱাংচুকক আৰক্ষীয়ে অন্নখনৰত অৱস্থাতে আটক কৰি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে সোনাম ৱাংচুকৰ অন্নখন ইতিমধ্যে 21 দিনত ভৰি দিছিল সোনাম ৱাংচুকে দাবী কৰিছিল যে শিক্ষা মন্ত্ৰী মানৱ সম্পদ মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে পদত্যাগ কৰিব লাগে এই দাবীৰ মূল ভিত্তিটো কি আছিল যে নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেন্সিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত নীট নামৰ পৰীক্ষাটো যিটো মেডিকেল প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষা এই পৰীক্ষাটোৰ প্ৰশ্নকাকত বাৰম্বাৰ ফাদিল হৈছিল আৰু লক্ষ লক্ষ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে একাধিকবাৰ নীট পৰীক্ষা দিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিল অৱশেষত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে উপায়হীন অৱস্থাত ইমানে অসহায় অৱস্থাত পৰিল যে সমগ্ৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থাটো সেনা বাহিনীৰ হাতত অৰ্পণ কৰিব লগা হ'ল সোনাম ৱাংচুকে দাবী কৰিছিল যে শিক্ষা মন্ত্ৰীজন ইয়াৰ বাবে নৈতিকভাৱে দায়ী সাংবিধানিক পদবী পৰিচালনাত তেওঁ ব্যৰ্থ হৈছে এতেকে তেওঁ পদত্যাগ কৰিব লাগে কিন্তু সোনাম ৱাংচুক অকলশৰীয়া নাছিল কক্ৰোচ জনতা পাৰ্টি নামৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত নিৰ্মিত এটা নতুন সংগঠনে এই আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিল আৰু সোনাম ৱাংচুকে এই আন্দোলনটোত কেৱল সহযোগ কৰিছিল কক্ৰোচ জনতা পাৰ্টি এই নতুন সংগঠনটোৰ যিটোৰ কোনো পঞ্জীয়ন নাই অথবা কোনো সভাপতি সম্পাদক বা কাৰ্যবাহী কমিটি নাই তেনেকুৱা কোনো সংগঠন তেওঁলোকে কেৱল ডিজিটেল মিডিয়াত প্ৰচাৰ কৰি এই কামটো কৰিছিল এই দলটোৰ নিৰ্মাণৰ ৰহস্যও বেলেগ আমাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্যকান্তে এটা বিশেষ গোচৰৰ যেতিয়া ৰায়দান কৰিবৰ হ'ল তেতিয়া তেওঁ এটা অদ্ভুত ধৰণৰ পৰ্যবেক্ষণ দাঙি ধৰিলে এই পৰ্যবেক্ষণটোত সূৰ্যকান্তে ক'লে যে আমাৰ কিছুমান ডেকালৰাৰ কাম কাজ নাই ইহঁত কক্ৰোচৰ দৰে পঁইতাচোৰাৰ দৰে অ'ত ত'ত যাকে তাকে কামুৰি ফুৰে য'ত ত'ত সোমাই ফুৰে একেবাৰে কাম কাজ নোহোৱা এলেহুৱা কিছুমানে ছ'চিয়েল মিডিয়াত যাক তাক আক্ৰমণ কৰে এইটোতেই প্ৰৰোচিত হৈ দেশৰ লক্ষ লক্ষ ডিজিটেল মিডিয়া ব্যৱহাৰ কৰা ছ'চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰ কৰা যুৱক যুৱতীসকল প্ৰৰোচিত হ'ল আৰু তেওঁলোকে জন্ম দিলে কক্ৰোচ জনতা পাৰ্টি সোনাম ৱাংচুক সামাজিক আন্দোলনৰ আজিৰ নেতা নহয় আপোনালোকৰ মনত পৰিব যে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ চৰকাৰ যেতিয়া ক্ষমতালৈ আহিল তেতিয়া 2019 চনত সেই 2019 চনতেই আগষ্ট মাহত কাশ্মীৰৰ পৰা 370 ধাৰা বাতিল কৰা হ'ল সংবিধানৰ 58 ক ধাৰা বাতিল কৰা হ'ল আৰু ইয়াৰ পিছত কাশ্মীৰক এখন কেন্দ্ৰীয় শাসিত ৰাজ্য আৰু লাডাখক এখন কেন্দ্ৰীয় শাসিত ৰাজ্যলৈ ৰূপান্তৰ কৰা হ'ল সোনাম ৱাংচুকে দাবী তুলিছিল 2023 চনত যে লাডাখক এখন পূৰ্ণাংগ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু সোনাম ৱাংচুকে এই দাবীৰ ভিত্তিত লাডাখৰ সেই হিমচেঁচা ৰাতিপুৱা গধূলি দিনে নিশাই অবিৰত অন্নখন অব্যাহত ৰাখিছিল আৰু পৃথিৱীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল অৱশেষত স্থানীয় ৰাইজ আৰু বিশ্ব সম্প্ৰদায়ৰ হেঁচাত সোনাম ৱাংচুকে তেওঁৰ অন্নখন প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে কিন্তু আন্দোলন অব্যাহত থাকিল এইবাৰ আন্দোলনে নতুন ৰূপ ল'লে সোনাম ৱাংচুকে হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকক লগত লৈ
লাডাখৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে নতুন দিল্লীলৈ আৰু 2024 চনৰ মাৰ্চ মাহত দৈনিক 20-30 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি এই হাজাৰ হাজাৰ লাডাখী জনতা নতুন দিল্লীৰ সিংগুৰ সীমান্তত উপস্থিত হ'ল নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ চৰকাৰে সিংগুৰ সীমান্ততে সোনাম ৱাংচুকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে যি সময়ত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ চৰকাৰে 370 ধাৰা বাতিল কৰিছিল 370 অনুচ্ছেদ বাতিল কৰিছিল সংবিধানৰ পৰা আৰু কাশ্মীৰৰ সুকীয়া মৰ্যাদা কাঢ়ি নিছিল সেই সময়ত সোনাম ৱাংচুকে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এই স্থিতিক অকুণ্ঠ সমৰ্থন জনাইছিল যে এইটো খুব ভাল কথা হৈছে আৰু সেই সময়ত সোনাম ৱাংচুক হৈ পৰিছিল বিজেপি দলৰ চকুৰ মণি সদৃশ এক ব্যক্তিত্ব কিন্তু আজি যেতিয়া সোনাম ৱাংচুকে সৰ্বসাধাৰণৰ এটা ন্যায্য ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতক লৈ যি ভ্ৰুকুটি চলিছে তাক লৈ যেতিয়া দাবী তুলিলে সেই বিষয়টোত যেতিয়া সোমাই পৰিল তেতিয়া বিজেপি দলৰ বাবে সোনাম ৱাংচুক হৈ পৰিল দেশদ্ৰোহী চীনৰ এজেণ্ট সেইজন সোনাম ৱাংচুকে যোৱা 21 দিন ধৰি যন্তৰ মন্তৰত অনশন কৰি আছিল আৰু পৰিকল্পনা কৰিছিল যে 20 জুলাইত অহা সোমবাৰে সোনাম ৱাংচুক সদল বলে সংসদ ভৱনলৈ যাত্ৰা কৰিব চৰকাৰ হয়তো ইয়াতেই ভীতিগ্ৰস্ত হ'ল আৰু আজি পুৱা সোনাম ৱাংচুকক অনশনথলীৰ পৰাই আটক কৰি লৈ গ'ল আমি নাজানো এই আন্দোলনটো কোনফালে গৈ আছে কোনফালে ধাৱমান বা আন্দোলনটোৰ ভৱিষ্যত কি কিন্তু সোনাম ৱাংচুক মানুহজনক বুজি পাবৰ কাৰণে আমি তেওঁক লগ পাইছিলোঁ আৰু গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ এটা সাক্ষাৎকাৰ সেই সাক্ষাৎকাৰটো আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত পুনৰ উপস্থাপন কৰিব খোজো আহক কথা পাতো সোনাম ৱাংচুকৰ লগত ব্যতিক্ৰমী ব্যক্তিত্বৰ এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াস লাডাখৰ দুৰ্গমতাত ৱাংচুকৰ সফলতাৰ কথা সোনম ৱাংচুক সমগ্ৰ ভাৰতবাসীৰ বাবে এক পৰিচিত নাম ব্যতিক্ৰমী চিন্তাধাৰাৰ ৱাংচুক একাধাৰে অভিযন্তা উদ্ভাৱক তথা এগৰাকী শিক্ষা সংস্কাৰক যাৰ ব্যতিক্ৰমী চিন্তাধাৰাৰ সুফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে দুৰ্গম লাডাখৰ বাসিন্দাৰ লগতে ভাৰতবাসীয়ে পৰম্পৰাগত নহয় বৈকল্পিক শিক্ষাত বিশ্বাসী ৱাংচুকৰ জন্ম হৈছিল তদানীন্তন জম্মু কাশ্মীৰ আৰু বৰ্তমানৰ লাডাখৰ আলচিত 1964 চনৰ 1 ছেপ্টেম্বৰত আজি শিক্ষা সংস্কাৰকৰ ৰূপত লাডাখত যুগান্তকাৰী পৰিৱৰ্তন সধা সোনম ৱাংচুকে 9 বছৰ বয়সলৈ গ্ৰহণ কৰা নাছিল পঢ়াশালীৰ শিক্ষা পাছত শ্ৰীনগৰৰ এক বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰা ৱাংচুকে ভাষাৰ সমস্যাৰ বাবে ভীষণ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ অকলেই দিল্লীলৈ পলায়ন কৰা সোনমে 1988 লাভ কৰিছিল বিটেক ডিগ্ৰী কিন্তু নিজৰ ব্যতিক্ৰমী চিন্তাধাৰাৰ বাবে মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ ৱাংচুকে ডিগ্ৰী লাভৰ পাছতেই লেহত আৰম্ভ কৰিছিল ষ্টুডেণ্ট এডুকেশ্যনেল এণ্ড কালচাৰেল মুভমেণ্ট অৱ লাডাখ চমুকৈ চেকমল নামৰ এক ব্যতিক্ৰমী শিক্ষানুষ্ঠান শিশুক বৈকল্পিক শিক্ষা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত চেকমল কেম্পাছ বিশ্ববিখ্যাত য'ত পোহৰৰ বাবে ৰন্ধা বঢ়া তথা উত্তাপৰ বাবেহে ব্যৱহাৰ কৰা হয় কেৱল সৌৰশক্তি দুৰ্গম লাডাখৰ শিশু শিক্ষাদানৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰখ্যাত ৱাংচুকৰ চেকমল কেম্পাছ ছাত্ৰৰ দ্বাৰা হয় পৰিচালিত প্ৰচুৰ উদ্ভাৱনী শক্তিৰ অধিকাৰী সোনম ৱাংচুকৰ শেহতীয়া আৱিষ্কাৰ আইচ স্তূপৰ জৰিয়তে কৃত্ৰিম গ্লেচিয়াৰ সৃষ্টি কৰি পূৰণ কৰা হৈছে লাডাখৰ খেতিপথাৰত পানীৰ নাটনি আনহাতে লাডাখৰ একমাত্ৰ ছপা আলোচনী লাডাচ মেলং হৈছে ৱাংচুকৰে চিন্তাৰ ফল
লাডাখৰ দুৰ্গমতাক নেওচি শিক্ষাৰ প্ৰসাৰ আৰু প্ৰচাৰত ব্ৰতী সোনম ৱাংচুক হৈ পৰিছে বহুজনৰ প্ৰেৰণাৰ উৎস। যাৰ জীৱন যুঁজ তথা সফলতাৰ কাহিনী বন্দী হৈছিল চেলুলয়ডত। বলিউডৰ ব্লকবাষ্টাৰ ছবি 3 ইডিয়টছৰ আমিৰ খান অভিনীত মূল চৰিত্ৰ ফুংচুক ৱাংৰুৰ মূল আধাৰ হৈছে সোনম ৱাংচুক। वैसे तुम्हारा असली नाम क्या है? फुनसुक वांगड़ू। वांगड़ू? पिया वांगड़ू? हाँ, नहीं मतलब तू साइंटिस्ट है? यानी कि तेरे नाम के 400 पेटेंट्स हैं? শিক্ষা সংস্কাৰকৰে অবিৰত যুঁজ বৰ্তমানেও অব্যাহত আছে দুৰ্গম লাডাখত, যাৰ বাবে আজি দেশৰ শত সহস্ৰজনৰ আদৰ্শ ব্যতিক্ৰমী ব্যক্তিত্ব সোনম ৱাংচুক। Welcome to our studio, Mr. Sonam Wangsuk, although this is a temporary arrangement. First of all, I would like to apologize because my Hindi is horrible. I can't speak good Hindi. So I would like to ask you in English, and for the convenience of our viewers, would you like to reply in Hindi? Sure. Because our viewers, all of them can follow Hindi well. প্ৰিয় দৰ্শক, আমি সোনাম ৱাংচুকক সুধিছিলোঁ তেওঁৰ শৈশৱৰ বিষয়ে। শৈশৱ তেওঁৰ কটাইছিল লাডাখৰ এখন সৰু গাঁৱত, য'ত শিক্ষাৰ কোনো ব্যৱস্থা নাছিল। 9 বছৰ পৰ্যন্ত তেওঁ স্কুল গৰকি পোৱা নাছিল। পাছত ৰাজনীতিক দেউতাক যেতিয়া কাশ্মীৰৰ এজন মন্ত্ৰী হ'ল, তেওঁক শ্ৰীনগৰলৈ লৈ যোৱা হ'ল আৰু তাৰ পিছতে আৰম্ভ কৰিলে শিক্ষা জীৱন। আহক তেওঁৰ শৈক্ষিক জীৱন আৰু শৈশৱৰ বিষয়ে অলপ জানি লওঁ। Sonam, may I call you by your first name? Yes, sure. Of course. Sonam, first of all, tell us about your early life. Tell us about your early life, because the world know your later part of your life, but most of the people did not know what was your early life. I am told that your father was a minister and you have been picked up from your village to Srinagar to study. So that's all what we knew. Can you tell us? Okay. धन्यवाद। सो असम के विभिन्न भागों में बसने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार और लद्दाख का नमस्कार। लद्दाख के लोगों का मैं आप सबके लिए प्यार भरा नमस्कार लेके आया हूँ असम में। मेरे बचपन की अगर बात करें तो जी मैं बहुत ही छोटे से गांव में जन्मा और बड़ा। वैसे तो लद्दाख ही बहुत जनसंख्या की दृष्टि से बहुत छोटा है और बहुत दूर है। 6 महीने तो ये कटा रहता है बाकी दुनिया से। अभी 2 महीने हुए कि हम कटे हुए हैं, अगले 4 महीनों तक। तो इस सुदूर पूर्व अंचल में एक छोटा सा गांव है उलेटोप्पो, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ था। वहाँ सिर्फ 5 घर हैं। 5 घर? अच्छा। अभी बढ़ गया है 100% और बन गया है 10 घर। तो फिर भी छोटा है आपके गुवाहाटी से। तो यहाँ पर एक दिलचस्पी की बात ये थी कि ये इतना छोटा गांव था कि यहाँ कोई विद्यालय स्कूल नहीं था। जहाँ एक तरफ लोग सोचेंगे कि ये तो बच्चे के लिए बड़ी बदकिस्मती की बात है, पीछे मुड़ के देखता हूँ तो शायद इससे बड़ी खुशकिस्मती की बात नहीं हुई मेरे साथ। क्योंकि जब मैंने और स्कूलों की हालत देखी तो मैं सोचता हूँ कि मैं बच गया। क्योंकि स्कूलों में बहुत बार बच्चों को तोड़ा जाता है, मरोड़ा जाता है। उनके जो अंदर की जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी, जो कि सॉफ्टवेयर है लर्निंग का, जिसके होते हुए आपको स्कूल मिले ना मिले, टीचर मिले ना मिले, किताब मिले ना मिले, आप सीखते हैं। बहुत बार हमारे स्कूल ही हमारे बच्चों की क्यूरियोसिटी तोड़ देते हैं। अच्छा। तो इसलिए मेरी खुशनसीबी थी कि मैं बचपन में खेत में किसानों के साथ, भेड़ बकरियों के साथ, कभी इंडस सिंधु नदी में डुबकी मारता, कभी एप्रिकॉट ट्रीज पे चढ़ता, सीखता रहा और अपनी माँ की मादरी जुबान में सीखता रहा, जो कि बहुत ज़रूरी है। और आजकल मैं देखता हूँ बहुत ही कम बच्चों को ये मौका मिलता है कि वो अपने मदर टंग में सीख सकें। That's very important. और अगर मदर टंग का आपका पकड़ अच्छा हो, उसकी नींव, उसका बुनियाद, तो आप और भाषाएं बहुत जल्द सीख सकते हैं। मैं तो 9 साल की उम्र तक स्कूल नहीं गया और सिर्फ अपनी लद्दाखी मातृभाषा सीखता था, मैं बोल पाता था।
फिर आगे जाके मुझे देर नहीं लगी कोई 9 भाषाएं सीखने में, बोलने में। 9 भाषा? जी, अगर आपकी पकड़ अपने भाषा पे अच्छी हो तो दूसरे भाषाएं सीखने में 6 से 9 महीने इतने ही लगते हैं। अच्छा। तो इस तरह से मेरा बचपन खेतों में गुजरा। फिर 9 साल की उम्र में मुझे घसीट के ले गए स्कूल और वहीं रुका मेरा सीखने का सिलसिला। धीरे धीरे पड़ गया। बहुत दुखदाई था जो शुरू के साल थे, क्योंकि मुझे सिर्फ लद्दाखी आती थी। मुझे श्रीनगर ले जाया गया जहाँ पे लोग मुझे समझते नहीं थे और मेरे भाषा का ना आना वो मेरे मतलब कि एक तरह से मैं रिटार्डेड, मंदबुद्धि हूँ, इस तरह से वो देखते थे। न शिक्षकों की कोई सहानुभूति थी, न दोस्तों का सहारा। तो मेरा बहुत मुश्किल का गुजरा पहले 2-3 साल, मगर फिर धीरे धीरे मैं कैचअप करने लगा। सोनाम वांगचुक निजे NITৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ গ্ৰেজুৱেট আৰু তাৰপিছত তেওঁ ফ্ৰান্সত উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছে। সোনাম ৱাংচুকে ইচ্ছা কৰিলে এটা চৰকাৰী চাকৰি অথবা কোনো মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানীত চাকৰি কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু সোনাম কিয় লাডাখলৈ ঘূৰি গ'ল? লাডাখলৈ ঘূৰি গৈ তেওঁ আচলতে কি কৰিব বিচাৰিছিল? আহক শুনি লওঁ। So you were graduated from NIT, didn't REC, Regional Engineering College, Kashmir. Much later, yeah. Yeah. Now it is NIT. Yes. So you are an engineering graduate. Later on, you went to abroad, France, to study for higher studies. You could have joined any MNC. You could have joined any government service. What exactly warranted or what inspiration you did have? What was your motive to come back to Ladakh and do all these scientific works? मेरा ये मानना है कि अगर आप ओरिजिनल थिंकिंग, मौलिक विचार से सोचें, ना कि किसी और के बताए हुए जो कि हमें स्कूल कंडीशन करता है। अगर आप स्कूल नहीं हो तो इसमें बड़ी बात ये नहीं है कि मैं अपने घर वापस आया। ये तो नेचुरल है, ये तो प्राकृतिक है कि कोई ज्ञान हासिल करने बाहर जाए तो वापस अपने गांव, अपने जगह जाके वहाँ का जीवन सुधारे। ये हैरानी की बात नहीं है। हैरानी की बात ये है कि कुछ लोग ऐसा नहीं करते हैं और वो एक मर्सनरी की तरह, एक किराए के सिपाही की तरह कहीं बेंगलोर में, कहीं सिलिकॉन वैली में किसी भी काम पे चले जाते हैं। मेरे लिए वो ज़्यादा हैरानकुन बात है। तो आप उनसे पूछिए कि वो क्यों नहीं गए अपने जहाँ वो बिलोंग करते हैं। मुझसे मत पूछिए कि मैं क्यों गया। मेरा जाना तो बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए। हर किसी को जाना चाहिए अपने जहाँ आप पैदा हुए हैं। शिक्षा अगर उस जगह को सुधारने के काम ना आए तो फिर किस काम का? और अगर वहाँ जाना एक हैरानी की बात है तो बहुत बदकिस्मती। Sonam, you have been leading this life for 3 decades, I think, more than 3 decades. And I'm sure you are very happy. But before the movie 3 Idiots, as a person, very limited people knew you. Very limited people knew that there is a Sonam Wangchuk working in Ladakh, doing this sort of activities. But after 3 Idiots, you become a star. Whether you admit it or not, I don't know, but you become a star. And India and beyond Indian border boundary, people came to know about you. Before doing that film, did Amir discuss with you? First of all, it's nothing, no big deal to become known. I never wanted to be known, and I'm half happy, half unhappy that I'm known. मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी कि मैं लोगों में जाना जाऊं, पहचाना जाऊं, बल्कि परेशान हूं अभी। मैं तो अपने इलाके में कुछ ज़रूरी हल, मसलों के, समस्याओं के हल ढूंढना चाहता था और उसी में खुश था। बल्कि कोई अखबार वगैरह, मैगजीन्स आते थे तो मैं उनको पोलाइटली भगा देता था कि मुझे अपना काम करने दीजिए, मेरे पास आपको दिखाने के लिए। Thank you for giving us this opportunity. आप तो हमको नहीं भगाया। You should appreciate. You should appreciate. So I had no such, desire to be known or to be famous. True. And it is a twin-edged sword. अभी भी 2-धारी तलवार है। इसके कुछ फायदे हैं, जैसे बंद दरवाजे खुल जाते हैं, और जगहों पे आप लोगों को
क्या कहते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं, इसके लिए अच्छा है। मगर दूसरी तरफ आप अपना काम अच्छी तरह नहीं कर पाते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं, इधर उधर जाना पड़ता है। तो आपका सवाल रहा ये फिल्म से जुड़ा हुआ। आमिर डिस्कस द मैटर विद यू बिफोर डूइंग दिस फिल्म। इसे मैं नहीं कहूँगा ये एक बायोपिक है विच इज हिस्टोरिकल और सो। तो बहुत से फिल्में प्रेरित होते हैं, इन्फ्लुएंस्ड, इंस्पायर्ड। तो मैं उनसे मिला एक अवार्ड फंक्शन में, जब मुझे एक रियल हीरोज़ अवार्ड मिला तो वो वहाँ पर थे। उन्होंने काफ़ी दिलचस्पी ली हमारे काम के बारे में, वहाँ पर मेरे काम के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाया गया। तो उससे मेरे ख्याल से उनके प्लान्स इंस्पायर हुए। मगर ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने हिस्टोरिकली रिसर्च करके ये बनाया है। इट्स ए movie that is inspired like many movies are, and I don't take pride, I don't have any problems also. সোনাম ৱাংচুকে মেগছেছে বঁটা পাইছে আৰু মেগছেছে বঁটা পোৱাৰ অন্যতম কাৰণ আছিল তেওঁৰ সাংঘাতিক ধৰণৰ নতুন উদ্ভাৱন আইষ্টুপা, বৰফৰ স্তূপ। এই বৰফৰ স্তূপটোনো কি তাক বুজিবলৈ আমি এটা সৰু ভিডিঅ' চাই লওঁ আহক, আৰু তাৰ পাছতেই আমি প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ সোনাম ৱাংচুকক। ये किसी पिघल चुके ग्लेशियर का अवशेष नहीं है। ये एक मानव निर्मित जल भंडार है जिसे बौद्ध स्तूप की शक्ल में बनाया गया है। बर्फ का स्तूप ये भारत के उत्तर में स्थित लद्दाख में रहने वाले इंजीनियर सोनम वांगचुक का आइडिया था। Now cones are shaped शंकु वो आकार है जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल अपने आयात के मुकाबले काफी कम होता है, इसीलिए सूरज उसे इतनी तेजी से नहीं पिघला सकता जितनी तेजी से वो सपाट बर्फ को पिघलाता है। जैसे ही गर्मियां आने लगती हैं तो ये बर्फ बहुत धीमे धीमे पिघलती है और किसानों को पानी देती है। water to the farmers. iStupa, that is your unique innovation. Tell us about what exactly it is and what is its usefulness. ओके, सो उससे पहले कि मैं आइस्तूपा क्या है बताऊं, ये बताऊं कि लद्दाख में लोग ग्लेशियर्स पर निर्भर करते हैं। वहाँ पर कोई पानी आसमान से गिरता नहीं है, गिरता भी है तो 4 इंच, जो कि बिल्कुल काफ़ी नहीं है। तो लोग फॉसिलाइज्ड प्राचीन पानी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि सैकड़ों या हज़ारों साल पुराना है, जो कि जमा हुआ है पहाड़ों में, उन्हें ग्लेशियर्स कहते हैं। अब जलवायु परिवर्तन के कारण ये ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं और छोटे होते जा रहे हैं। तो खासकर बाहर के मौसम में, स्प्रिंग टाइम, जब किसानों को पानी ज़रूरत होती है, पानी आता नहीं है, क्योंकि एक तो बर्फ़ छोटे हैं ग्लेशियर्स, दूसरा उन ऊपर पहाड़ों पर इतनी गर्मी नहीं होती है कि वो पिघल पाएँ, तो लोगों को बहुत तकलीफ होती है। तो हमने ये कहा कि अगर हमारे प्राकृतिक ग्लेशियर जो हैं नेचुरल वो पिघलते जा रहे हैं, तो हम क्यों ना मानव निर्मित कृत्रिम ग्लेशियर्स बनाएं। और इसका भी मैंने काफ़ी सुन रखा था बचपन में कि हमारे पूर्वज सैकड़ों साल पहले ऐसा कुछ करते थे। और हाल के सालों में एक वरिष्ठ इंजीनियर थे छेवांग नोरफेल जी, वो भी कुछ ऐसा ही कर रहे थे। उनको कुछ समस्याएं थी, तो इन दोनों को देखते हुए मैंने एक ऐसा उपाय निकाला कि ये पानी जो सर्दियों में, गर्मियों में तो सबको चाहिए, सर्दियों में किसी को पानी नहीं चाहिए, खेती होती नहीं है, मगर फिर भी नहरों में, झरनों में पानी बहता रहता है, उसे कैसे सर्दियों में जमा दिया जाए, स्टोर किया जाए। क्योंकि अगर पानी के रूप में तरल लिक्विड जमाए तो बहुत बड़ा डैम चाहिए, जो कि महंगा है, खतरनाक है। मगर सॉलिड जमा दिया जाए तो उसको कुछ नहीं चाहिए, बहुत सस्ता है। तो कैसे हम ये जो ग्लेशियर से मेल्टेड ट्रिकल पानी आता है उसको रीफ्रीज करें, दोबारा जमाएं, दोबारा बर्फ बना दी। ये तो करते हैं मगर वो जल्दी पिघल जाता है। किसान को चाहिए मई में और वो मार्च में ही पिघल जाता है। तो हमने ज्योमेट्री का सहारा लिया और हमने कहा कि इसे फैलाकर फ्लैट हॉरिजॉन्टल जमाने से तो ये धूप में पिघल जाएगा, धूप को सह नहीं पाएगा। मगर अगर हम इसे कोनिकल, स्फेरिकल, हेमिस्फेरिकल, ज्योमेट्री कहता है कि जो ये गोल या अर्धगोल या कोनिकल आकार है, इसमें एरिया कम से कम और वॉल्यूम ज्यादा से ज्यादा होता है।
क्योंकि धूप को एरिया चाहिए, वो कम से कम दे रहे हैं, किसान को वॉल्यूम चाहिए, वो ज्यादा से ज्यादा दे रहे हैं। तो हमने एक कोनिकल शेप में पानी को जमाना शुरू किया, और उसमें भी कोई ईंधन नहीं, कोई पावर नहीं, पोल्यूशन नहीं, पावर बिल नहीं, जस्ट एक पाइप को ऊंचाई पर इनलेट पानी में डाला नदी में, और नीचाई पे लेके आए, जिससे कि पाइप के अंदर प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि फिजिक्स में कहते हैं वाटर ऑलवेज मेंटेन्स इट्स लेवल, पानी हमेशा अपना सतह बराबर रखता है। तो उस प्रेशर पे हमने जब फाउंटेन डाला तो ये पानी बौछार की तरह स्प्लैश करने लगा, स्प्रे करने लगा आकाश में, Like a sprinkle. जी, फाउंटेन। और -20 के कोल्ड टेम्परेचर में ये पानी, फिर पानी नहीं रहता है, ये अपना हीट, लेटेंट हीट खो बैठता है और सॉलिड हो जाता है लिक्विड से। तो सॉलिड होते 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 ये 10 से 12 मंजिल तक का एक बहुत ऊंचा पहाड़ सा बन जाता है, जो कि एक मैन मेड ग्लेशियर कह सकते हैं। और फिर ये अपने आकार के कारण मई जून तक नहीं पिघलता है, और जब पिघलता है तो धीरे धीरे पिघलता है, एक ही दिन में नहीं, जिस तरह से ज़रूरत पड़े। तो इस तरह से जब पानी की ज़रूरत नहीं तब उसे संचय करके स्टोर किया जाता है फ्रोज़न, और जब ज़रूरत है तो वो नेचुरली धीरे धीरे पिघलता है। ये है आइसतूप। Surprising, really. It's really, I'm really very impressed because I knew about you, but the science behind it I didn't know. ভাৰতত বিজ্ঞানৰ যথেষ্ট প্ৰসাৰ হৈছে, আমি মংগলযান পৰ্যন্ত আৰম্ভ কৰিছোঁ, কিন্তু বৈজ্ঞানিক মানসিকতাৰ প্ৰসাৰ এতিয়াও আশানুৰূপ নহয়। এই প্ৰসংগত আমি প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ সোনাম ৱাংচুকক। Sonam, in India, scientific development is taking place in a way, not a very big way, but in a way it has been taken place. But the scientific temper, it is not going in the same pace. How do you observe this phenomena? हमारे आम लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण काफ़ी कम है। हम बहुत बार किसी ने कहा, किसी ने सुना, कोई जादुई, कोई चमत्कार, उनमें पड़े रह जाते हैं, जो कि बहुत बार अंधविश्वास का रूप होता है, और जो लॉजिक से तर्क संगत बातों का विश्लेषण करना, एनालिटिकल थिंकिंग हम में बहुत कम है, क्योंकि शायद हमारे विद्यालय हमें इसके लिए तैयार नहीं करती है। कैसे एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, ये सब। तो इसमें एक तो हमारे स्कूलों को बदलने की ज़रूरत है, ताकि वो सिर्फ रटे रटाए जवाब ना सिखाएं, बल्कि कैसे जवाब खुद ढूंढे वो सिखाएं। तो इस प्रक्रिया में आपका सारा ये जो सुपरस्टिशन वगैरह है वो उतर जाएंगे, क्योंकि खुद को सोचना होता है। यहाँ तो हम, जो शिक्षक ने कहा, जो किताब में है वही उड़ेल देते हैं, और उसे आपको मार्क्स मिलता है, उससे आपका पोजीशन आता है। तो ये बदलने की ज़रूरत है। दूसरा, समाज में ही हमें अपडेट होने की ज़रूरत है। हम काफ़ी पिछड़ से गए हैं, अभी भी हम बहुत पुराने यकीनों में फंसे रह गए हैं। यहाँ पर कितने ही लोगों को, मतलब क्या कहेंगे, बुद्धू बना के पैसे कमा के चले जाते हैं, और वो भी अच्छे शिक्षित लोग बिल्कुल अंधविश्वास में फंसे देखकर मुझे बहुत दुख होता है। तो समाज के स्तर पर मीडिया, फिल्म्स बहुत काम कर सकते हैं, और बच्चों के स्तर पर विद्यालय, शिक्षक, अगर वो अच्छे से अपना शिक्षा को कार्यवाहन करें। জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তন এটা উদ্বেগজনক পৰিঘটনা, আৰু সোনাম ৱাংচুকে দীৰ্ঘদিন ধৰি জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তনৰ ওপৰত অধ্যয়ন আৰু সক্ৰিয়তা অব্যাহত ৰাখিছে। যোৱা 26 জানুৱাৰীৰ পৰা তেওঁ 4 দিন জুৰি দীঘলীয়া অনশন ব্ৰত কৰিছে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ সম্পৰ্কত, জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তন সম্পৰ্কত সচেতনতা অনাৰ বাবে। তেওঁৰ এই ফাষ্ট ফৰ ক্লাইমেট, জলবায়ুৰ বাবে অনশন, ইয়াৰ উদ্দেশ্য কি আছিল, আমি সুধিছিলোঁ সোনাম ৱাংচুকক। Sonam, on 26th January, from 26th January you have started a fast for climate, and you are very much concerned about climate change.
Naturally, scientists like you must be concerned. My question is in two parts. First, how do you observe the concern about the climate change in both macro and micro level? That is my question number one. Then later part I will discuss. तो अगर आप लद्दाख में हों तो आपको बहुत चीज़ें बदलते दिखते हैं। जैसे एक तरफ तो क्लाइमेट चेंज से जो ग्लेशियर्स पहले सड़क पर आती थी, अब वो सैकड़ों मीटर दूर चले गए हैं। अच्छा, दिखता भी नहीं है, चढ़ के जाना पड़ता है, जिस पर से कि मुझे याद है एक ब्रिज लगाया होता था ताकि ग्लेशियर को पार कर सके। नदी नहीं है, बर्फ का नदी है। अभी वो कहीं दिखता नहीं, ना ब्रिज है ना ग्लेशियर है, ऐसी हालत है। और ये जब ग्लेशियर्स जाते हैं पिघल के, तो ये खामोशी से शांति से नहीं जाते हैं, ये बाढ़ बन के नीचे आते हैं। अच्छा। और लोगों को बहुत नुकसान करते हैं। 2010 में तो लगभग 1000 लोग खो गए थे ऐसे बाढ़ में। अच्छा। जिसमें कि कुछ क्लाउड बर्स्ट और कुछ ग्लेशियर Avalanche, मेल्टिंग वगैरह कई कारणों से होते हैं, मगर ऐसे बहुत हो रहे हैं, जिसका मतलब है कुछ बदल रहा है क्लाइमेट चेंज। हमारे लद्दाखी में मच्छर के लिए कोई शब्द नहीं है, यानी कि हम मच्छर को नहीं जानते थे, अब हर जगह मच्छर दिख रहे हैं। अच्छा। तो क्लाइमेट चेंज से ऐसे जंतु आ रहे हैं जो कभी पहले देखे नहीं गए थे। कुछ अच्छी बातें भी हैं, जहाँ पर फ्रूट्स नहीं होते वहाँ फ्रूट्स हो रहे हैं, जहाँ सब्जी नहीं होती वहाँ सब्जी हो रही है। तो इनका फायदा भी लें, मगर दूसरी तरफ अडेप्ट करने की जरूरत है मुश्किलों से भी। तो ये हम देख रहे हैं। But I would like to know about the concern at micro level and at macro level. So how do you observe the concern? जी तो International community, do you think that international community is taking very seriously? well, the scientists are taking very seriously. They have come up with researches time and again. हिंदी में बहुत शोध कर रहे हैं, चीख के बोल रहे हैं हर फोरम में, मगर सुनने वाले बहुत कम हैं। लोग बिजनेस एज यूजुअल चल रहे हैं, उनको अपने बिजनेस की पड़ी है, उनको अपने बॉटम लाइन और रेवेन्यूज और ग्रोथ की पड़ी है। ये एक ऐसा हालत है जहां पर कल और परसों के फायदे के लिए, मुनाफे प्रॉफिट के लिए आप जनरेशंस को दाव पे लगाते हैं। So what do you suggest, what we are supposed to do in micro level? At individual level, जो क्लाइमेट फास्ट अनशन जो मैं कर रहा था 26 जनवरी से, वहाँ मेरे 2 पक्षीय मुद्दे थे। एक तो मैं अपील कर रहा था, विनती कर रहा था माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वो ध्यान दें लद्दाख के इस नाजुक जलवायु पर, और लद्दाख को संविधान के अनुच्छेद 244 के 6ठे शेड्यूल में ले लें, जिससे कि उसकी संरक्षण होगी। मगर ये सब हमारे पर्वतों का संरक्षण, ग्लेशियर्स का, ये प्रधानमंत्री जी या सरकार के हाथ में ही नहीं है, लोगों के हाथ में भी है। तो माइक्रो लेवल पर लोगों को अपनी जीवन शैली बदलनी होगी। ये सोच पुराना हो चुका है कि हमारे पास तो पैसे हैं, हम जैसे भी जिएं, आपको क्या फर्क पड़ता है, मैं अगर आधा खाऊं आधा फेंक दूं, माचिस की डिब्बी 50 ग्राम का लेने के लिए 2500 किलो का कार ले जाऊं, आपको क्या है। ये सोच पुराना हो चुका है। अब हमें अपना ही नहीं सबका सोचना होगा। तो जैसे मैं कह रहा हूँ, बच्चे आपके दर्शकों में भी होंगे, बहुत बड़ा रोल कर सकते हैं। सबसे पहले तो खुद को सुधारें। वो जब आधा खाना खाते हैं आधा फेंकते हैं, तो उसका मतलब है कि जो कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो वन ऑफ द बिगेस्ट पोल्यूटर्स हैं, जिसके वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो आप पूरा पोल्यूशन करके आधा फेंक रहे हैं। उससे अच्छा था आधा नहीं फेंकते, तो आधा ही प्रोडक्शन करते, आधा ही पोल्यूशन करते, आधा ही विनाश करते। तो हम अपना जीवन सुधारें, खासकर बच्चे जो खाना फेंक देते हैं। दूसरा, वो एक तरह का इको पुलिसमैन बन सकते हैं घरों में। वो बड़ों को भी सुधार सकते हैं कि आप जो प्रयोग नहीं करेंगे वो क्यों जाया कर रहे हैं, वेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो लोगों को जीवन शैली बदलनी होगी। आपके पास पैसा है तो आप 20 जूते खरीदेंगे,
40 कमीज खरीदेंगे। नहीं, पैसा काफी नहीं है कि ये हक आपको दे, क्योंकि आपका जो 21वां जूता है वो जूता आपके जरूरत का भी नहीं है, मगर उसके लिए कितने फैक्ट्रीज चलते हैं जिसके धुएं से ये वातावरण बिगड़ता जा रहा है। आपकी कमीज, आपके पतलून, आपकी गाड़ियां, 5वीं गाड़ी आपको जरूरत नहीं है, मगर उसका जो नुकसान है वो उतना ही है जितना पहली गाड़ी का होता है। तो लोगों को बदलना होगा, इसलिए हम ilivesimply.org एक ऐसा मुहिम, एक आंदोलन चला रहे हैं लद्दाख से। आई लिव सिंपली, मैं सादा जीवन जीऊंगा, जीऊंगी। अभी तो प्रधानमंत्री जी ने भी एक लाइफ मूवमेंट चलाया है, लाइफस्टाइल्स फॉर द एनवायरनमेंट, जिसमें ये अपील की जाती है कि लोग अपने जीवन शैली को बदलें और वो क्लाइमेट फ्रेंडली, पर्यावरण मैत्रीपूर्ण जीवन शैली अपनाएं, कार्बन इंटेंसिव जीवन शैली से हटकर। तो आज के 21वीं सदी में अगर हम पाप और पुण्य को रीडिफाइन करें तो कार्बन इज पाप, एमिशन इज पाप, ऑक्सीजन इज पुण्य। तो पेड़ लगाइए, वेस्टेज कम कीजिए, ये सब पुण्य है, बाकी सब पाप हैं। जमाने अलग अलग में ऐसी परिभाषाएं निकलती हैं। कभी खून खराबा होता होगा जब हम आदि मानव थे, तो किलिंग को पाप कहा गया, जान बचाने को पुण्य कहा गया। मगर आज लोग मारते नहीं फिरते हैं। तब दो लोगों में झगड़ा हो जाए तो सर फोड़ के फैसला करते थे। आज वो सब खत्म हो चुका है। हमने पाप और पुण्य और भगवान का जो डिफिनेशन परिभाषा किया, उससे वो थम गया। अब दोबारा रीडिफाइन करने की जरूरत है। अब वो मारना और बचाना नहीं, आज कार्बन और ऑक्सीजन में पाप और पुण्य को डिफाइन करना हो। But who will build the gate? Who will let it know to US, United States or China? Because their emission level is the highest. देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स में भी लोग समझ रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट्स को आर्म ट्विस्टिंग या वॉर से नहीं, बल्कि लोगों में समझ बढ़ाकर होने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं कोई मौका नहीं खोता हूँ जब लद्दाख के किसी ग्लेशियर पे जाके मैं चिल्लाता हूँ, या कभी जनवरी में जमे हुए बर्फ के नदी में कूद जाता हूँ, ताकि ये आवाज़ उन लोगों तक पहुँचे जहाँ ये अय्याशी, ये क्या कहते हैं, वेस्टफुल लाइफस्टाइल जिया जा रहा है। तो हमें उनको समझाना होगा, और बहुत लोग समझते भी हैं। और जब ये क्रिटिकल मास होगा तो सरकार को भी अपने नीतियां बदलनी होगी, क्योंकि सरकार चाहे अमेरिका में हो या भारत में हो, जनता के समर्थन पर निर्भर करती है। तो इसलिए जनता को जागना होगा। सरकार तो बाय प्रोडक्ट है। अगर जनता जाग जाए तो सरकार की नीतियां बदलेंगी ही बदलेंगी। One political question. How do you observe the abrogation of Article 370 in Kashmir? Well, as far as Ladakh was concerned, and I limit myself to that, हमारे लिए 370 जो अनुच्छेद है वो एक रुकावट थी लद्दाख को एक स्वायत्त प्रदेश बनाने में, एक ऑटोनमस, एक यूनियन टेरिटरी या स्टेट बनाने में। इस 370 के चलते हम अलग नहीं हो पा रहे थे, और कोई वजह नहीं थी कि लद्दाख को, जो कि तिब्बतो मंगोलियन नस्ल के हैं या भाषा भी अलग बोलते हैं, कश्मीर से जोड़ने का। ये हिस्ट्री का एक एक्सीडेंट था कि इन दोनों को एक ही टोकरी में डाल दिया गया था, और लद्दाख अलग होना चाहता था। अलग होने में 370 आड़े आती थी, तो लोग चाहते थे ये हटे। कश्मीर के लोगों की नज़र से मैं नहीं कह रहा हूँ, लद्दाख के लोगों के नज़र से इसका हटना लद्दाख के लोगों के लिए बहुत खुशी की बात थी, क्योंकि उसके चलते फिर लद्दाख एक तरह से आज़ाद होकर एक यूटी या स्टेट बन सकता था। दूसरी तरफ संरक्षण चाहिए थी लद्दाख को भी, वो हमारी उम्मीद थी कि ये 6 शेड्यूल जो आर्टिकल 244 है उससे मिलेगा। अभी भी हम इंतजार कर रहे हैं। सोनाम वाংচুকক আমি সুধিছিলোঁ যে আপোনাক যদি আকৌ এবাৰ জন্ম লোৱাৰ সুযোগ দিয়া হয় তেনেহলে আপুনি জীৱনটো কি হৈ জন্ম ল'ব বিচাৰে আৰু কেনেকৈ জন্ম ল'ব বিচাৰে? Sonam, you are given a chance to born again. What kind of life you want to lead and how
do you want to start it? आई थिंक मेरे ख्याल से मैं यही जो कर रहा हूँ वो करना चाहूँगा। मुझे बहुत खुशी है जो कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने नहीं दूसरों के जीवन पर प्रभाव डाल सकता हूँ, और सिर्फ मानव जाति के नहीं, पशु पक्षियों के जीवन पर, जानवरों के, पेड़ पौधों के, नदी पहाड़ों के जीवन पर प्रभाव डाल सकूं। ऐसा मानव जीवन में ही संभव है। तो मैं चाहूँगा मैं सोनम वांगचुक ही पैदा हूँ। সোনাম ৱাংচুকক আমি সুধিছিলোঁ যে তেওঁক এটা নিৰ্জন দ্বীপলৈ লৈ যোৱা হ'ল বা যাবলৈ কোৱা হ'ল, তেওঁক লগত নিবলৈ দিয়া হ'ল এজন ব্যক্তি, এখন কিতাপ আৰু এটা গীত। তেওঁ কোন ব্যক্তিৰ লগত যাব, কোনটো গীত লগত লৈ যাব আৰু কোনখন কিতাপ লগত লৈ যাব, সোনাম ৱাংচুকে কি কয় শুনো আহক। You are going to a solitary island. No habitation is there, no inhabitant. And you are allowed to take along with you one person, one book, one song. With whom you want to go, what song you want to carry, and what book you want to carry. Well, I'll take my closest person, my partner with me, and song. मैं एक गीत तो वैसे नहीं, मगर But one song only. अगर अब वहाँ पे कोई लोग नहीं हो तो शायद मेरा एक कीड़ा है कि मैं अपने ही लिए नहीं जी सकूंगा। तो शायद ऐसे आइलैंड पे अगर कोई मकसद हो तो ही जाऊंगा, वरना वहीं से वापस आ जाऊंगा अगर वहाँ कुछ करने को नहीं। You are not going to avail that opportunity. If there is no cause to struggle far, I won't. मगर अगर हो तो मुझे आप दूसरे शब्दों में पूछ रहे हैं कौन सा गीत अच्छा लगता है, तो मुझे गीत अच्छा लगता है, एक पुरानी हिंदी फिल्म से है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। वाह, जी बहुत खूब। जी। And book? Book, it won't make sense, because whatever book I take, it will be finished in no time. So I will actually read and write my own books in my mind. Okay. Thank you very much for giving us so much of time. You are really very busy. After finishing the first, you went to Dubai, then to Delhi, then to this place. So looking forward to meet you again. Thank you, सोनम। धन्यवाद आपको भी, आप सभी दर्शकों को। मगर मैं आप लोगों से एक अपील यही कहना चाहूँगा जो कि मैं कर रहा था। हम पहाड़ों से ये कहते हैं शहरों के लोगों को, प्लीज़ लिव सिंपली इन द बिग सिटीज़ लाइक गुवाहाटी, कोलकाता, सो दैट वी इन द माउंटेन्स में सिंपली लिव। हम जी सकें, इसके लिए आप थोड़ा सादा जीवन जिए, यही मेरी। Thank you. धन्यवाद। Thank you very much. This program was brought to you by GNRC Hospitals, Quality, Value, Trust.